Hello my dear students, how are you? I hope you all are fine and you have get your marks of the SA1 exams and you all are satisfied with this. Today we are going to start a new chapter, that is the more on CSS3, that is cascading style sheet. In cascading style sheet, in my earlier video, in my previous video, I have told you about the HTML program, because I have given you 1-2 program for the practice, because you will be familiar that how we can make the HTML program and how we can use the cascading style sheet in the HTML program. HTML program is using, that is the combination of the tags which we are using in the HTML, and after that is the simple programs, you can write down your text and you can run, and that will create a simple web page. But if you want to give the style to the web page, then you have to use the cascading style sheets. So we are doing this chapter here, that is the cascading style sheet. If you want to provide some style to the web pages, you can use this style with the help of the cascading style sheet. So here are some features which I will tell you in this theory part. Firstly, you have to understand these features for how you can give the style to the web page, and after that you have to do the practical of this. First is the HR style, that is inline style. If you want to give the inline style in the web page, then you will use the HR style. But please firstly open your book when you are listening my video, because whenever a book will be open, it will be very easy to grab all the concepts, and it will be very easy to understand that how you can use this style and how you can make your web page more attractive. First style we are using is HR. HR means that is the horizontal tag which we are using for giving the horizontal line. अगर आप सिंपल HTML में HR टैग यूज करते हो, क्लोज कर देते हो, तो ये कंप्लीट HR लाइन आपको दिखाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन शो करेगा. बट यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ हम एक स्टाइल प्रोवाइड कर रहे हैं. स्टाइल में हमने उसकी विड्थ दी है, दैट इज द 50%. 50% मीन्स अगर 100% देते हो तो पूरी लाइन आ जाती है, 50% देते हो तो हाफ लाइन आपको शो करेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन. एंड बैकग्राउंड कलर हमने उसका दिए ग्रीन कलर का आ जाएगा. एंड हाइट आ जाएगी इसकी 10 इंच. हाइट इसकी मतलब कितनी, हिंदी में हम इसको बोलेंगे मोटाई, मतलब वो लाइन कितनी आपको मोटी दिखेगी, तो 10 इंच हमने इसकी दे दी है. उसके अकॉर्डिंगली ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेगा. और ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन को ये कुछ हमने कुछ स्टाइल प्रोवाइड किया है, ये कुछ हमने फीचर्स यूज़ किए हैं, कुछ इनबिल्ट फीचर्स यूज़ किए, जैसे कि विड्थ यूज़ किया, बैकग्राउंड कलर यूज़ किया, हाइट यूज़ किया. तो बाय यूजिंग दिस फीचर यू कैन make the horizontal line so attractive. That is given in your book with this practical, that is here in this you can do this first practical in HTML. and next हम कुछ text properties यूज कर रहे हैं. text properties में हम whatever we are writing in the HTML program, and we will give the some properties, we are defining some properties to giving the style to the text. These are some styles. टेक्स्ट अलाइन मीन्स कि हम टेक्स्ट को कहीं पे अलाइन कैसे करना है, जैसे कि आप MS वर्ड में करते हो, वर्ड प्रोसेसर में करते हो. वट एवर वी आर राइटिंग वी कैन अलाइन इट लेफ्ट साइड, राइट साइड, justify and the middle. So here we can use all these tags in the HTML, but we have to use this feature with this text align properties. text align लिखकर आपको डबल डॉट लगाना है. then you have to mention any alignment, that is left alignment, right alignment, center alignment and justify alignment according to your requirement. Then all the text will be aligned according to this. Next is the text decoration. In this decoration you can decorate your text, that is you can show your text that will be underlined, that will be overlined, मतलब लाइन के ऊपर लाइन आ जाए, लाइन जो भी टेक्स्ट आप लिखोगे उसके ऊपर लाइन आएगी, अंडरलाइन में उसके नीचे लाइन आएगी. लाइन थ्रू यूज़ करोगे तो पूरे टेक्स्ट के बीच में एक लाइन आएगी, और ब्लिंक यूज़ करोगे देन दैट विल बी ब्लिंक, और नन यूज़ करोगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा. तो हम कोई भी इफेक्ट इसमें से यूज़ कर सकते हैं फॉर गिविंग द स्टाइल टू द आवर वेब पेज. नेक्स्ट इज द टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म. यू कैन यूज द ट्रांसफॉर्मेशन to the text. Transformation means you can use the capitalized uppercase and the lowercase. If you will use the capitalized, then the first character of every word will be the capital letter. Next, uppercase. If you are using the uppercase, then everything whatever you are writing in the HTML, that will be shown in the uppercase letters. If you are using lowercase, then everything will be shown in the lowercase letters. So you can use various options, various
options with this property, that is the text transform property. Next is the text shadow. If you want to give a shadow to the text, जैसे कि हम MS Word में देते हैं word art, we are using the word art and it provides a beautiful look by giving a shadow to the words whatever you are writing in this. In HTML we can use this property for giving the shadow, that is the text shadow. In this text shadow, that you have to use these three options, that is H shadow. H shadow is the horizontal shadow, and next is the vertical shadow, and next is the color of your shadow. जो भी आपकी shadow होगी वो horizontal भी होगी, vertical भी होगी. तो horizontal कितने पिक्स की, मतलब कितनी मोटी होनी चाहिए वो shadow, या आपको वो पिक्सल्स में शो करना है. vertically कितनी मोटी होनी चाहिए वो शो करना है, और कलर क्या लेना है वो शो करना है. आप यहाँ पे जैसे से वैल्यूज चेंज करते जाओगे, कलर चेंज कर दोगे, तो शेडो आपकी उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव रिटन अ टेक्स्ट इन द ब्लू कलर एंड यू वांट अ शेडो इन अ रेड कलर, देन यू विल यूज हियर अ रेड कलर. और आप उससे ज़्यादा मोटी अगर, और आप जो कि शेडो है यू वांट टू शो इन दैट शुड बी वेरी थिन, तो आप यहाँ दैट शुड बी वेरी थिक अगर आप शो करना चाहते हो तो आप यहाँ पे उसकी पिक्सल्स वैल्यू बढ़ा दोगे, और थिन शो करना चाहते हो तो पिक्सल वैल्यूज लो कर दोगे. नेक्स्ट इज द टेक्स्ट इंडेंट. टेक्स्ट इंडेंट मीन्स टेक्स्ट इंडेंटेशन मीन्स कि जब भी हम कोई पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो हम उसके लेफ्ट हैंड साइड से कुछ मार्जिन छोड़ते हैं, तो दैट इज नोन एज द टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी. इन दिस आप शो कर सकते हो पिक्सल्स में भी और परसेंटेज में भी. इसको हम 100, पूरी जो हमारी लाइन है उसको हम 100% मानते हैं. अगर आपने पूरा, जैसे आप पैराग्राफ स्टार्ट करते हो, हाफ पूरा छोड़ना है तो यू विल शो इट 50%. और अगर आपने पिक्सल्स को भी 100 पिक्सल्स हम एक तरह से मानेंगे, और आपने इतना सा एरिया लेफ्ट हैंड साइड से यू वांट टू लेफ्ट द स्मॉल एरिया, देन यू कैन गिव इट 10 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स, 30 पिक्सल्स अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. यू कैन गिव द वैल्यू ऑफ दिस. And two more properties are there which I have not written here in your book, that is word break. If you want the word break means if you are writing a line, then where it will break the line, then there are the three options. The first is the normal. Words will break according to their usual rules. According to जहाँ भी वो लिखता है आ रहा है, यहाँ पर suppose आपका कोई word आ गया, suppose we are writing here transform. तो ट्रांसफॉर्म अगर पूरा नहीं आ रहा, सिर्फ ट्रांस आ रहा है और आपने नॉर्मल यूज़ किया है, तो बाकी वर्ड्स की बीच में स्पेस को ये एडजस्ट करेगा, और ट्रांसफॉर्म या तो यहाँ पे ले आएगा या पूरा ट्रांसफॉर्म नीचे लाइन में ब्रेक कर देगा. और अगर आपने ब्रेक ऑल लिया है तो ये किसी भी कैरेक्टर पर ट्रांस तक आ रहा है तो ट्रांस ही करेगा और फॉर्म नीचे वाली लाइन में आ जाएगा. और अगर आपने कीप ऑल यूज़ किया है तो ट्रांस लिख के, जैसे आप कॉपी में यूज़ करते हो, एक हाइफन शो कर देगा और उसके बाद फॉर्म नीचे वाली लाइन में आ जाएगा. दिस इज द पर्पज ऑफ दीज थ्री. एंड नेक्स्ट इज द लाइन हाइट. लाइन हाइट मीन्स इफ यू आर राइटिंग द लाइन्स इन द HTML, देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द वन एंड फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन के बीच में कितना गैप छोड़ना है, दैट इज द लाइन हाइट. वो भी आप नंबर्स में लिख सकते हो 1, 1.5, 2. अगर आप नंबर्स में शो कर 1 आपने लिखा है लाइन हाइट के अंदर, तो एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच में ये एक लाइन का गैप छोड़ देगा. एक लाइन जितनी भी आपकी होती होगी उतनी ही नेक्स्ट लाइन को स्किप कर देगा, फिर सेकेंड लाइन को थर्ड लाइन में जाके लिखेगा. मतलब दैट इज द गैप बिटवीन द लाइन्स, दैट इज द लाइन हाइट. तो दिस इज ऑल अबाउट द टेक्स्ट प्रॉपर्टी फीचर्स. नाउ इज इट क्लियर टू यू? अगर आपको मेरी वीडियो आपने देखी है, जस्ट लिसन माई वीडियो. Now please give a look in your book and then read out these options, these properties, then all things will be clear to you. Please don't hesitate कि मैम ने क्या पढ़ा दिया और बुक में क्या है, कुछ भी नहीं है. It's very simple. You can read it, you can you can listen my video, and after that whenever you will open your book and you will read out from your book, everything will be clear to you. ये तो हमने थ्योरेटिकली में आपको पढ़ाया, अब आपको इसका प्रैक्टिकल करना है. ये प्रैक्टिकल आप खुद करेंगे, एंड आफ्टर दैट यू विल टेल मी थ्रू SMS और my WhatsApp दैट योर प्रैक्टिकल इज completed or not. In this practical you have to done simple HTML program. In this HTML program, this is HTML tag, next is head tag. You can see that is given in the page, that is given on the page number 109. Next is the title which you directly use. Next is the, अब हमें एक स्टाइल,
अब ये कास्केडिंग स्टाइल शीट को हमें पहले इंसर्ट करना पड़ता है। वो हम कैसे इंसर्ट करते हैं, हमने टैग यूज़ किया, स्टाइल टाइप यूज़ किया, हम टेक्स्ट को स्टाइल दे रहे हैं, हम टेक्स्ट की कास्केडिंग स्टाइल यूज़ कर रहे हैं, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहे हैं। तो वी हैव यूज द text/css, मतलब वी आर यूजिंग द कास्केडिंग स्टाइल शीट्स ऑफ द टेक्स्ट प्रॉपर्टी। फिर हमने एक बॉडी टैग लिया कि बॉडी को क्या स्टाइल दे रहे हैं। बॉडी के अंदर हमने मेंशन कर दिया उसका कलर ब्लू होना चाहिए, तो उसकी टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन है, मतलब जो भी हम लिखेंगे वो अंडरलाइन आएगा। फिर हमने P यूज़ किया, P इज़ यूज फॉर द पैराग्राफ। P का पैराग्राफ का स्टाइल क्या होना चाहिए, टेक्स्ट इंडेंट 30 पिक्सल्स है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर वो 30 पिक्सल्स का स्पेस लेफ्ट आउट करेगा। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज्ड है, हर एवरी वर्ड फर्स्ट करेक्टर ऑफ एवरी वर्ड विल बी कैपिटलाइज। एंड लाइन हाइट कितनी लिया हमने 1.5, मतलब लाइन्स के बीच का गैप कितना होगा 1.5 लाइन्स का। फिर हमने H1 यूज़ किया, H1 इज यूज फॉर द हेडिंग का स्टाइल किया टेक्स्ट अलाइन सेंटर, जो भी हम हेडिंग लिखेंगे वो सेंटर में आएगी, उसमें एक शेडो आएगी और शेडो में हमने वर्टिकल, हॉरिजेंटल और उसका कलर मेंशन कर दिया और स्टाइल को हमने क्लोज कर दिया। इट मीन ये पूरा स्टाइल आपके पैराग्राफ के लिए, आपकी बॉडी के लिए, वट एवर यू आर राइटिंग इन HTML, और जो भी हेडिंग आप लिख रहे हो उन तीनों का हमने स्टाइल मेंशन कर दिया और स्टाइल क्लोज कर दिया। उसके बाद हम HTML प्रोग्राम स्टार्ट करें। हमने बॉडी अगेन स्टार्ट की, बॉडी में H1 हमने क्या लिया, सक्सेस। हमने तो H1 में सक्सेस लिख दिया, लेकिन ये ऊपर से ऑटोमेटिकली H1 में जो हमने स्टाइल दिया था ये उसको पिक कर लेगा। फिर हमने पैराग्राफ लिखने स्टार्ट किए, फिर पैराग्राफ में हमने अलग से भी स्टाइल मेंशन कर दिया, और जो हमने ऊपर स्टाइल मेंशन किया ये यहाँ से उठा के वो पूरा स्टाइल यहाँ इस पैराग्राफ में भी इंसर्ट कर देगा। एंड आफ्टर दैट बॉडी इज क्लोज एंड HTML टैग इज क्लोज, एंड देन आफ्टर डूइंग दिस program you have to write down this program in Notepad, and then you have to run it with the HTML extension, और please save it whenever you are saving it। तो आपने save as टाइप में क्या करना है, सेव एज टाइप में ऑल फाइल्स लेनी है, ये ध्यान में रखना। जब भी इसको सेव करोगे, आपने फाइल नेम तो दे दिया जो भी लिया, मान लो मैंने S1 इसका नेम लिया S1.html, एंड व्हेनेवर यू विल सेव इट, सेव एज टाइप में आप ऑल फाइल्स यूज़ करोगे, और उसके बाद इसको आप सेव जब करोगे तो ऊपर ध्यान रखना पाथ का होना चाहिए डेस्कटॉप ही देना, बिकॉज इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। जैसे आप डेस्कटॉप पे सेव कर दोगे तो इस फाइल का एक आइकन आ जाएगा आपके वेब ब्राउज़र वाले आइकन से, देन यू विल डबल क्लिक इन एंड देन यू विल रन दिस प्रोग्राम। सो इट विल बी इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, बस थोड़ा सा ध्यान से इसको एक बार मेरी वीडियो सुन लो, उसके बाद बुक में से पढ़ लो, और उसके बाद ये प्रोग्राम रन करके देख लो। एंड प्लीज़ revert back me through SMS and WhatsApp that have you done the practical of this. It will be very clear to me कि आपको समझ आ गया ये कॉन्सेप्ट। बस अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो उसके बाद फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल है, मार्जिन प्रॉपर्टीज़ हैं, बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ हैं। वी कैन मेक द प्रोग्राम विद दिस ऑल्सो। हम कैसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़ और मार्जिन प्रॉपर्टीज़ को, बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ को। एंड आफ्टर दैट दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। So please do the practical and give me revert back me that how you have done the practical of this. Tell them thank you and have a nice day.